Namaskaram and a very good afternoon, all of you. How are Monday blues treating you, or how are you dealing with Monday blues? This session is a part of the YT batch, the YouTube batch. That's the foundation batch that's happening on YouTube, and we're going to discuss RCs very briefly. Those of you who don't know me, my name is Karishma, and I'm your coach for verbal ability and reading comprehension. There was some confusion related to the timings today. I was informed 12:30, but the session was scheduled for 12. But never mind. Usually my timings are 12:30, so here I am sharp at 12:30. I hope we are live. Are we? Hi, Extra Napkins podcast. Samiksha, Manasvi, Samiksha, Rachayita, Devyani, Prabhat, Sakib, Nidhi, Aanchal, Astha, Ashish, Tanya, Game Bread. Sudeep, Disha, Rajnandani, Gautam, Saksham, Ram, Richa, Sayori, Ishika, Devyani. Yes, I'm fine. Thank you for asking. Hi, Harshika. The genre course starts today at 7:30. I was unwell yesterday, otherwise it would have started yesterday. Hi, Usha. Hi, Gauri. How come you're here, Gauri? Hi, Pritesh. Hi, Vedant, Astha, Tanya, Prerna, Pratyaksh, Anchika, Aanchal, Altaf, Ishika, Rahul, Ashwini, Ritika, Soumya, Varsha, Mansi. Good afternoon, everyone. Good to see all of you. It's the last YouTube for the month of May, and RC genres begins today in the plus classes at 7:30. So we are going to do the Bismillah today at 7:30. It's a brand new course of 11 classes, very beautiful course. Zero practice, lots of theory. This course gives you an insight into various genres like philosophy, psychology, history, some current affairs, economics, business, international relations, and so on and so forth. So you might join this popcorn course today at 7:30. You can access it from my profile, or I'll post the link on the Telegram channel soon after this session ends. Before we begin with the RC, I'm going to do a CAT 2003 RC with you today. I don't know if you were born during that time or not. Maybe some of you were. So that in 2003, the CAT paper was leaked, and the paper had to be taken twice. So what I have today for you is a passage from CAT 2003 retake exam. So therefore, whenever you come across any question that says 2003 R in brackets, that R means retake. If it says C in bracket, it means cancelled. So anyway, that's what we're going to do today, and we'll discuss a little basics of RCs for new students. I would strongly recommend that if you want to improve RCs, you join all the free special classes that happen, in which we do CAT articles, CAT passages. You should also take advantage of the free eclectic reading sessions that happen on YouTube. I usually take them on Monday, Wednesdays, and Fridays at 12:30. And of course, a plus subscription will help you prepare for everything thoroughly, the theory and practice, both of them. And there is this 20% off along with an extension offer going on. It was till 26th of May, but it has been extended on public demand till May 31. So for 20,000 only, you are getting a 6-month plus 3 months of free, which means 9 months of subscription, which is good enough for your CAT and OMETS 2023. If you're preparing for 24, then you can subscribe. You can take a 12-month subscription, get 6 months free, and stay with us for 18 months, and that's only for 24,000. If you research a little, you will find that the market prices, this price is pretty competitive as compared to the market prices, and it's a good time. It will be late if you do not really join right now, so I would highly recommend that if you've not already begun your preparation but you intend to take CAT 2023, now is the time. The Prodigy Scholarship Test will happen on the June 11th, on the 11th of June at 3 p.m. Please check this detail and know that there are various scholarships and prizes that you can win. This is a snapshot of some of our toppers. The results have been great so far, and we are expecting better results this year. The Zero to Zenith batch started on the 25th of May, and you can join us. The RC Genres course is a part of this batch, so you are, like I said, very cordially invited to attend the class at 7:30. These are the iconic subscription offerings and the features that Plus and iconic subscriptions offer on Unacademy. Let's begin with the passage. Please start reading. Namaste, good afternoon.
I'm fine, thank you for asking. How to read the Hindi editorial? Like you read anything else? Okay, Gauri. Yes, I am Altaf. Thank you for asking. I'm good, Rohit. Is everybody done reading?
Are we done? If you are done reading, you can try and attempt the first question. Write the answer in your notebook and we'll discuss all the answers together. There are 5 questions if I'm not wrong. So we'll discuss all the 5 questions together along with the passage. Are we done? Can we go ahead to the second question?
Done? Can we discuss the passage now? Okay, have you understood the passage well? I'll give you a brief overview of the passage. Esoteric is something which is specialized, not understood by everyone. And du jour basically means of the day. Okay, so specialization of the day कह सकते हैं. This is esoterica. Okay, and du jour will stand for of the day. तो कहता है जब मैं कोलंबिया में था क्लास में तो मैं स्ट्रगल करता था स्पेशलाइजेशन ऑफ द डे से, क्योंकि मेरे पिताजी तो होते थे ब्रिकलेयर के स्कैफोल्ड पे. स्कैफोल्ड इज़ लाइक a platform, a raised platform wherein you tie it up because you want to build something. That's one usage. The other usage is it's a raised platform where you can execute criminals. तो यहाँ पे criminals तो नहीं है, उसके पिताजी buildings बनाते हैं, तो scaffold मतलब वो ऊपर चढ़े हुए हैं कहीं स्ट्रीट के कॉर्नर में काम कर रहे हैं ब्रिकलेयर के स्कैफोल्ड पे, तो ब्रिक्स ले कर रहे हैं, वर्किंग ऑन अ कैंपस बिल्डिंग. Once we met on the subway going home, he was with his tools, I was with my books. So his father is basically a blue collar person, which means a laborer. Okay, so he carries his tools, and then the son is with books. So he's a white collar person. White collar jobs are jobs that are desk jobs, office jobs, and blue collar jobs are physically laborious jobs. Okay. My father wasn't interested in Thucydides and I wasn't up on arches. You have a question based on this line, so this is important. तो मैं आर्चेस के बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था, चढ़ना नहीं जानता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था बिल्डिंग को कैसे स्ट्रक्चर देना है, कहाँ आर्च बनाना है, क्या करना है. और मेरे पिताजी को थ्यूसिडाइड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था. थ्यूसिडाइड्स इज बेसिकली एन अथेनियन फिलोसोफर. तो उसके पिताजी को किताबों से कोई मतलब नहीं था और बेटे को टूल से कोई मतलब नहीं था. फिर यहाँ पर आयरॉनिकल दिखाया हुआ है कि उसके पिताजी ने ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई है जिसके अंदर वो खुद कभी नहीं जा सकते, जहाँ वो हमेशा आउटसाइड पे रहते हैं. तो उन्होंने ऑफिस के टावर्स बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, कॉन्डोज बनाए हैं, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो अल्टीमेटली एक लेबरर है. और उनके लिए एक अजीब सी फीलिंग है कि एक बार बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो वो वहाँ पर वेलकम नहीं होते हैं. तो वो कहता है कि मैं और मेरे पिताजी ब्लड से तो बधे हुए हैं लेकिन क्लास से डिवाइडेड है. मैं एक ब्लू कॉलर पेरेंट का वाइट कॉलर चाइल्ड हूँ और हम हमेशा दरवाजे की हिंज पे ही बैठे रहते हैं बिटवीन टू वेज ऑफ लाइफ. हिंज होता है वो गुटका जिससे दरवाज़ा कनेक्टेड होता है चौखट से, द पॉइंट फ्रॉम विच द डोर इज अटैच्ड टू द फ्रेम. With one foot in the working class, one in the middle class, people like me are straddler. Straddler is basically when you straddle, you have one foot on both sides. Okay, for example, on a horse or somewhere else. तो स्ट्रैडलर का मतलब है कि यहाँ पर इसका मतलब है कि आपका एक पाँव वाइट कॉलर ज़िंदगी में है और एक पाँव ब्लू कॉलर ज़िंदगी में है. ठीक है, तो स्ट्रैडलर बेसिकली इज़ टू स्टैंड विथ वन लेग ऑन बोथ साइड ऑफ अ फ्रेम और समथिंग. At home in either world, living a limbo life. Limbo is basically when everything is stagnant and there is waiting happening, you know. For example, आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं और उसके बाद रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप एक अनसर्टेन पीरियड में होते हैं और आप एक डिसीजन की तैयारी डिसीजन का वेट कर रहे होते हैं. ठीक है, या आपने कहीं कोई अपने सारे स्टेप्स ले लिए हैं, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, आपने सारे स्टेप्स ले लिए और उसके बाद आप किसी मैटर के रेजोल्यूशन का वेट कर रहे हो. ठीक है, लटका हुआ बीच में जिसे हम कहते हैं लिम्बो. ओके, what drove me to leave what I knew born blue collar? I was still not completely at home with tough guys and anti intellectual crowd. तो ना तो मैं टफ गाइज के साथ जो लेबोरियस काम करते हैं और एंटी इंटेलेक्चुअल है उनके साथ मैं ब्रुकलिन में कंफर्टेबल हो पाया, और ना ही मैं प्रेपीज इज़ बेसिकली एक्सपेंसिव कॉलेजेस का स्टूडेंट, प्यूपल ऑफ एन एक्सपेंसिव प्रेप स्कूल, और ना ही मैं प्रेपीज के साथ कभी खुश रह पाया, उनके साथ भी घुल मिल नहीं पाया सब अर्बन रॉयल्टी में कोलंबिया की. तो फिर स्ट्रैडलर्स के लिए ना जीवन ऐसे ही रहता है, ना तो वो ब्लू रह जाते हैं ना वाइट रह जाते हैं. और उनके लिए आसान नहीं था इसके लिए इटालियन ओल्ड वर्ल्ड से यूएस प्रोफेशनल में जंप कर जाना एक ही सिंगल जनरेशन में. लाइफ इज़ अ लिम्बो नहीं, इज़ इन अ लिम्बो कहेंगे. ओके, या फिर लिविंग अ लिम्बो लाइफ. Others who were the first in their families to go to college will tell you the same thing.
द अकेडमी कैन रेंडर यू अनरिकग्नाइजेबल टू द वेरी पीपल हु लॉन्च्ड यू इनटू द वर्ल्ड। एक बार आप अकेडमी जाना स्टार्ट करते हैं यानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि आप अपनी फैमिली में पहले व्यक्ति हो कॉलेज जाने वाले, तो आप उनको ही पहचान में नहीं आओगे जिन्होंने आपको दुनिया में लॉन्च करा है यानी पैदा किया है। आइडियाज़ और वैल्यूज़ जो आप ऑब्जॉर्व करते हो कॉलेज में, वो चैलेंज करते हैं मॉम और पॉप ऑर्थोडॉक्सी को, जिसके साथ आपने 18 साल गुजारे हैं। तो कॉलेज आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाता है जो आपके ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज से बिल्कुल अगेंस्ट है। लिम्बो फोक में एसक्यू इज़ बेसिकली टू लीव, टू अबैंडन, टू एब्सटेन फ्रॉम, टू रिफ्रेन फ्रॉम, टू अवॉइड। तो लिम्बो फोक क्या करते हैं, फिर पॉलिएस्टर ब्रांड्स को अवॉइड करते हैं और सी आयल कॉटन ऑप्ट करते हैं, ब्राई को अवॉइड करते हैं और क्राफ्ट स्लाइसेस खाते हैं। दीज आर ऑल फूड आइटम्स, ब्राई एंड क्राफ्ट। दे मैरी आउटसाइड द नेबरहुड एंड रेज देयर किड्स डिफरेंटली, और वो फिर शादी भी बाहर करते हैं अपनी मर्जी से, और उनके किड्स रेज करने का तरीका भी अलग होता है। वो चर्च भी नहीं जाते हैं संडे को। जब वो करियर्स चुनते हैं, जॉब्स नहीं, करियर्स, तो दिस इज़ अ हिंट कि कैसे लैंग्वेज बदल जाती है। तो फिर ये कोई ऐसा काम होता है जो उनके माता पिता ने कभी ना सुना होता है, ना उन्हें उनकी कोई समझ होती है। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए जो कि वाइट कॉलर किड्स हैं, ब्लू कॉलर पेरेंट्स के, ऑफिस उनके लिए कोई शेल्टर या सैंक्चुरी नहीं है। वो लॉस्ट फील करते हैं। क्लास, सोशल ऑफ क्लास जो है वो ऑफिस में मायने रखती है, चाहे कोई उसे एडमिट करे या ना करे, क्योंकि मिडिल क्लास बच्चे तो बचपन से डिप्लोमेसी सीखते हैं, डिटेल सीखते हैं, पॉलिटिक्स सीखते हैं, और उनको आता है कि जो उन्हें चाहिए वो कैसे हासिल करना है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई ऐसे रूल्स पढ़ रखे हैं किसी मैनुअल से, जो मैनुअल ब्लू कॉलर फैमिलीज़ को कभी दिया ही नहीं जाता। तो मिडिल क्लास पेरेंट्स को बॉन्ड किए जाने वाले कॉलेज डिग्री लाइफ्स जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और उनको एक कल्चरल कैपिटल मिलता है मिडिल क्लास वालों को, कल्चरल पूंजी, ठीक है। दे गेट कैपिटल, दे गेट नॉलेज इन टर्म्स ऑफ कल्चर इनसाइड देयर होम, ठीक। एंड दे ग्रो अप इन एन एजुकेटेड एनवायरनमेंट। तो वो घर पे पिकासो के बारे में, मोजार्ट के बारे में, स्टॉक पोर्टफोलियोज़ के बारे में, क्रेम ब्रूले के बारे में भी सीखते हैं। क्रेम ब्रूले इज़ अ फ्रेंच मील, डेजर्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। In a home with cultural capital, there are networks. Someone always has an aunt or a golfing buddy inside track में internship दिलवा देता है, कोई entry level job दिलवाने वाला होता है, कोई inside tracks जानने वाला होता है। डिनर पे बात होती है कि लॉ फर्म में क्या हुआ, पिताजी के ऑफिस में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव स्वीट पे क्या बात हुई। तो मिडिल क्लास वाले बच्चों के पास एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है, वो सारी ज़िंदगी उसे लेके अपने साथ घूमते हैं। और ये जो बिलोंगिंगनेस उन्हें मिलती है, ये सिर्फ मटीरियल लर्निंग के लिए नहीं है, ये पजेसिंग कॉन्फिडेंस में भी हेल्प करती है। तो जब इतना ज़बरदस्त अर्ली एक्सेस और डायरेक्ट एक्सपोजर है कल्चर का घर पे, वो इतना ऑर्गेनिक है, तो फिर लेजिटिमेट मीन्स ऑफ अप्रोप्रिएटिंग कल्चर कैपिटल आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आप बचपन से ही ये कल्चरल कैपिटल एक्यूमुलेट करते आते हैं। और जो इल गॉटन कल्चर के लोग हैं, यानी इसके जैसे ब्लू कॉलर लेबर क्लास बच्चे, वो तो सीख तो सकते हैं, लेकिन कभी उतने खूबसूरती से नहीं सीख सकते जितने खूबसूरती से मिडिल क्लास वालों को ये आता है, क्योंकि उनको तो बचपन से आदत है। तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बारे में कुछ ऑफ है, जैसे कोई इंजन हो जिसका टाइमिंग ठीक नहीं है। और ग्रेटर मैच है मिडिल क्लास लाइफ्स और इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें मिडिल क्लास काम भी करता है और ऑपरेट भी करता है। तो क्योंकि मिडिल क्लास ही इंस्टीट्यूशंस चला रहा है, इसीलिए वो वहाँ पे ज़्यादा वेलकम फील करता है बजाय बाकी के लोगों के। चिल्ड्रन ऑफ द मिडिल एंड अपर क्लासेस हैव बीन स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द बॉसेज एंड सुपरवाइजर्स फॉर एवर। तो मिडिल क्लास और अपर क्लास के बच्चों को बॉस की भाषा बोलना हमेशा से आता है। ब्लू कॉलर किड्स को तो ये सिखाया जाता है कि भैया मेहनत करनी है, मेरिट से ही कुछ हो पाएगा। और ब्लू कॉलर पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि ये एक्चुअली दुनिया में काम करता है या नहीं करता, क्योंकि उनको डिप्लोमेसी, नुआंस, बात करने का तरीका ये सब नहीं आता, उनको सिर्फ मेहनत आती है। तो इसीलिए वो लोग आउट मनूवर्ड फील करते हैं। आउट मनूवर्ड इज़ बेसिकली आउट स्किल्ड। तो उनको लगता है कि बाकी वाइट वाले हमसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वाइट कॉलर के बच्चे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, अपना माइंड हमेशा जो आपके मन में है वो बोलना, ये हमेशा काम नहीं करता। चाहे स्ट्रैडलर कितना ही एजुकेटेड हो, उसको पता नहीं होता कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। वर्किंग क्लास में चिल्ड्रन व्हाट डू दे लर्न, उनको पता होता है रूल्स के साथ कॉन्फॉर्म करना, टू अडियर टू द रूल्स, चुपचाप ओबीडियंटली काम करना, और बदतमीज़ी से पलट कर बात नहीं कर सकते हैं, वो टॉलरेट नहीं होती है। याद रखिएगा कि ये सारी की सारी एक अच्छे फैक्ट्री वर्कर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये बच्चा कभी भी फिट ही नहीं हो पाता। ये क्या सीखता है? फैक्ट्री वर्कर की कैरेक्टरिस्टिक्स सीखता है जो माँ बाप सिखाते हैं। इसको दुनिया की चतुराई नहीं आती है, ठीक है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन पैसेज। लेट्स डू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस about cultural capital is not true? What is your answer? I'm fine, thank you for asking फैजान। आंसर बताइए जल्दी से।
Cultural capital socializes children early into the norms of middle class institutions. True. Helps them learn the language of institutions. True. Creates a sense of enlightenment. True. It develops bright kids into straddlers. No, bright kids don't become straddlers. Straddlers try to become bright kids. So this is the answer. Not true. See, so easy peasy. So if you look at older CAT papers, the passages will be longer, the questions will be easier. These days the passages are shorter, the questions are tougher. तो टाइम वही लगता है घूम फिर के. ठीक है. According to the passage, the patterns of socialization of working class children make them most suited for jobs that require diplomacy. No, not really. Compliance with orders, yes, given in the last line. Enterprise and initiative, no. And high risk taking, absolutely no. So the answer here will be 2. Any doubts in the first 2 questions? Okay, let's go to the next question. When straddlers enter white collar jobs, they get lost because they miss the mom and pop orthodoxy. Not at all. They have no one to guide them through the corporate maze. This is not mentioned in the passage. They have not read the rules and corporate manuals. Is written figuratively at the back कि ऐसा लगता है कि इन बच्चों ने वो मैनुअल नहीं पढ़ा जो मिडिल क्लास वालों ने पढ़ा था. वो फिगरेटिवली लिखा है, ये ट्रू नहीं है. ऐसा सच में कोई मैनुअल नहीं है. सो देयरफॉर दे आर थ्रोन इनटू एन एलियन वैल्यू सिस्टम. उनका वैल्यू सिस्टम मैच नहीं करता है, इसीलिए वो इन जॉब्स में एडजस्ट नहीं कर पाते. What does the author statement, my father wasn't interested in Thucydides and I wasn't up on arches, illustrate? इसका कल्चरल कैपिटल से कोई ताल्लुक नहीं है. कल्चरल कैपिटल तो मिडिल क्लास वालों के पास है. एरोगेंस कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है. कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है. इवॉल्विंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. ब्लू कॉलर व्यक्ति के बच्चा वाइट कॉलर व्यक्ति बनने जा रहा है, तो वो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है. तो ये अच्छा आंसर हो सकता है. ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स. देयर आर नो रिलेशनशिप ब्रेकडाउन. इट्स जस्ट दैट द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स बिकम वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देयर इज नो ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप्स एज सच. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन. Which of the following statements about straddlers does the passage not support explicitly? Does not support explicitly. पीछे लिखा है क्राफ्ट और ब्राई स्लाइसेस, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो उनके पेरेंट्स से मैच नहीं करते हैं. वो लोग चर्च नहीं जाते हैं, ये पीछे मेंशन्ड है. वो लोग कहीं पे भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ये भी पीछे मेंशन्ड है. उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफर करेंगी, ये भी पीछे मेंशन्ड है. फूड प्रेफरेंसेस मैच नहीं करते. पिताजी गोलगप्पे खाते हैं, मम्मी कड़ी चावल खाती है और हम क्रेम ब्रूले खाते हैं, ये नहीं लिखा हुआ. फूड प्रेफरेंसेस मिडिल क्लास वालों से मैच नहीं करते हैं. क्राफ्ट और ब्राई स्लाइसेस वाला जो सेंटेंस है मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ. ये रहा. लिम्बो फोक प्रेफर ब्राई टू क्राफ्ट स्लाइसेस. पॉलिटिक्स एट्सेट्रा उनको सीखनी पड़ती है मिडिल क्लास वालों से. ठीक है. सो देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में डिफर, देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस में डिफर, दे मैरी आउटसाइड द सोसाइटी एट्सेट्रा. ओके. Khushi, please ask me very quickly, otherwise the session will get over. They are at home neither in the middle class nor in the working class is also true. So therefore the answer will be the food preferences don't match their parents. This is not mentioned in the passage. Explicitly कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बच्चों को और माँ बाप को डिफरेंट खाना पसंद आने लगता है. Tell me how many of you got 5 out of 5. लास्ट लाइन में समझा देती हूँ. लास्ट लाइन में लिखा है कि जो चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को वर्किंग क्लास के, वो है कॉन्फॉर्मिटी, रूल्स फॉलो करना. कॉन्फॉर्मिटी इज़ अडियरेंस टू रूल्स. ओबीडियंस, चुपचाप बात मान लेना, और कोई भी पलट कर जवाब न देना. ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छे फैक्ट्री वर्कर को बनाती हैं. ठीक. थैंक यू कृति. तो जो लोग अच्छे फैक्ट्री वर्कर को बनाते हैं वो यही क्वालिटीज़ हैं. तो आप उनको क्या सिखा रहे हैं? आप हैं ब्लू कॉलर, उनको बनाना चाहते हैं वाइट कॉलर, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग बन जाते हैं ब्लू कॉलर ही, क्योंकि उनको वो क्वालिटीज़ आती हैं जो ब्लू कॉलर वालों को आती है. ठीक है, कोई दिक्कत? So I think this is an easy passage. 4 out of 5 is an expected, minimum expected score. Anything below that shows that you have not understood or read the passage carefully and you need to work harder when it comes to first page का last line. When it comes to reading and comprehending more. वो कहता है कि
others who were the first in their families to go to college will tell you the same thing. जो कि बाकी लोग जो कि पहली बार कॉलेज में गए अपनी फैमिली में, वो भी आपको यही बोलेंगे कि एकेडमी यानी कॉलेज आपको अनरिकग्नाइजेबल बना देता है उन्हीं लोगों के लिए जो कि आपके जैसे हैं. तो जो आइडियाज़ और वैल्यूज़ आप कॉलेज में एक्सेप्ट करते हो, जिनके साथ आप अडेप्ट करते हो, वो आपके मॉम एंड पॉप की द्वारा सिखाई गई ऑर्थोडॉक्सी यानी पेरेंट्स के द्वारा सिखाए गए ट्रेडिशन को और कंजर्वेटिज्म को, जो कि आपने 18 साल तक सच समझा था, उसको दरकिनार कर देते हैं. तो माता पिता की बात नहीं समझ आती है, आइडियाज़ और वैल्यूज़ कॉलेज के समझ आने लगते हैं. ठीक है, ऑल करेक्ट इज़ परफेक्ट. Okay, so take care all of you. I'll see you in the evening with the RC Genres course, and that's all for today. We'll all meet in the evening and have a good time and learn a lot. Till then, take good care of yourself.